right, let's just jump right in. What we're talking about today is, and I'm not exaggerating here, one of the biggest shakeups to India's business and labor landscape we've seen in decades. It's the Code on Social Security 2020. And trust me, this isn't just some small update. It's a ground-up rewrite that's going to affect every single business in the country. So what's the big idea behind it all? Well, at its core, it's about making things radically simpler. The government has taken 9 separate, often confusing, and really old labor laws and basically merged them all into one single unified code. And you can really see the scale of that change right here. I mean, we're talking about everything from the Provident Fund Act, which dates all the way back to 1952, to the Maternity Benefit and Gratuity Acts. All of these are now being brought under one single roof, and it all kicks in on November 21, 2025. It is a massive, massive consolidation. The whole effort is really driven by these 3 big ideas. First, to simplify that incredibly complex web of rules that companies have to deal with. Second, universalization, to make sure Social Security protections cover every worker in India. And that doesn't just mean your typical office employee, but also, for the first time, gig and platform workers. And third, modernization, bringing the entire system into the 21st century. Now, out of all these huge changes, there is one that's going to hit home immediately for every single business leader, every HR manager, and that is the brand new definition of wages. And this quote right here, it just nails it. It gets right to the heart of the matter. Getting this one definition wrong is basically the fastest way to find yourself facing huge financial penalties and serious legal trouble. So it's absolutely crucial that you understand what wages actually means now. And here it is, the new standardized definition. From now on, when you're calculating things like Provident Fund, ESI, or gratuity, wages means your basic pay, your dearness allowance, and any retaining allowance. That's it. And what's really important is what it excludes. A whole list of things like house rent allowance, bonuses, overtime pay, and travel reimbursements. So this leads to a really important question, right? Because for years, many companies have structured their salaries in a specific way. What happens if those excluded allowances, the HRA, the bonuses, actually make up the biggest chunk of someone's total pay? Well, the code has a very clear, very smart answer. It's called the 50% rule. And it's basically designed to stop companies from gaming the system to lower their statutory payments. The rule is simple. If all those excluded allowances add up to more than half of an employee's total pay, the amount over that 50% line gets tacked right back onto the wages for your calculations. Let's walk through an example to make this super clear. Let's say an employee makes 1 lakh rupees total, but their basic pay is only 30,000, and the other 70,000 is made up of those excluded allowances. Now, the 50% line for their total pay is 50,000 rupees. Since their allowances are 70,000, that's 20,000 times over the line. So that extra 20,000 gets added to their basic pay. All of a sudden, their new statutory wage for calculating PF and all that is 50,000 rupees, not the old 30,000. This is a complete game changer for how payroll has to be calculated. Okay, so beyond payroll, this code introduces another change that is truly revolutionary. For the very first time in India, it officially recognizes and builds a social safety net for the gig economy. Until now, there's been this massive gap. If you were a traditional employee, you had a whole set of Social Security benefits. But if you were a gig worker, think about your ride-sharing drivers, your food delivery partners, millions of freelancers, you were completely on your own, totally outside the system, which left so many people incredibly vulnerable. This new code flips that script entirely. It says we have to create schemes that give these workers a whole range of benefits that they never had access to before. We're talking life and disability insurance, accident coverage, health and maternity benefits, and even old age protection. So the next logical question is, who's paying for all this? Well, it's a mix of government money and CSR funds. But here's the really crucial part.
a mandatory contribution from the aggregators themselves. Platforms like Uber, Swiggy, and Zomato will now have to pay between 1% to 2% of their total annual turnover into a special fund just for these workers. So we've got new rules and we've got new coverage for more people. Which brings us to the next big question. How is all of this going to be enforced? And here too, the code signals a really major change in thinking. The old system, which a lot of people called the Inspector Raj, was often seen as this combative, us versus them relationship. The new model rebrands that role to an inspector cum facilitator. The idea is that their main job isn't just to catch you doing something wrong and penalize you, but to actually advise and guide employers on how to get it right. And a huge piece of this new puzzle is technology. Inspections are going to be web-based and randomized to cut down on any potential bias. There will be one single electronic registration for businesses. All reports and even wage slips are going digital. It's all about making things more transparent and way easier to manage. But, and this is a really big but, don't make the mistake of thinking this new collaborative approach means they're going soft. The penalties for not complying are serious, and they get worse fast. A first offense might just be a fine, but if you're a repeat offender, especially if you fail to pay your statutory contributions, you're looking at a mandatory minimum prison sentence of 2 years, plus a hefty fine. And this isn't just on the company. The liability goes right up to the company directors personally. Okay, so let's try and pull all this together. With that November 2025 deadline getting closer and closer, what are the biggest risks you need to be looking out for, and what are the immediate steps you should be taking, like right now? Here are the biggest red flags. Number 1, without a doubt, is getting that 50% wage rule wrong. Next, you could be held responsible if one of your contractors fails to pay their workers' dues. A third huge one is not having that compulsory gratuity insurance or a dedicated fund set up. And finally, you could accidentally inherit enormous liabilities if you're doing a merger or acquisition and don't do your homework properly. So what do you need to do? It's really time to act. First, do an immediate audit of all of your employees' CTC structures, like yesterday. Second, get a modern digital HR and payroll system that can actually handle these new complex rules. Third, get your gratuity insurance sorted out. Fourth, update all your internal HR policies to reflect all the new rules. And finally, you have to train your team, HR, finance, leadership, so everyone knows what's coming. When you take a step back and look at the whole picture, it's clear this isn't just another law. It really is a paramount inflection point. It is a fundamental historic transformation of how Social Security and labor law work in India. Look, the changes are massive. They're going to touch your payroll, your contracts with every vendor you use, and your entire compliance strategy. And the clock is definitely ticking. So it all boils down to one simple question. Is your business ready? तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में। यह है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। देखिए, इसने ना एक बहुत ही उलझे हुए अतीत को समेटकर एक नए एकीकृत भविष्य की नींव रखी है। तो चलिए इस ऐतिहासिक कानून को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि पुराना सिस्टम इतना उलझा हुआ क्यों था। फिर जानेंगे कि यह नया कोड कैसे सबको एक साथ लाता है। हम बात करेंगे गिग वर्कर्स की, जिन्हें पहली बार सुरक्षा मिली है, और उस नए 50% वेतन नियम की जिसने सबको चौंका दिया। फिर देखेंगे कि डिजिटल जमाने में कंप्लायंस कैसे बदला है, और आखिर में इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पुरानी कहानी से। इस नए कोड से पहले भारत का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कैसा था? सोचिए, ये कोई एक सीधी सादी किताब नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा उलझा हुआ कानूनी जाल था। हर चीज के लिए अलग अलग कानून। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1923, सोचिए कितना पुराना है। 1923 से लेकर 2008 तक ये 9 बड़े कानून थे जो सोशल सिक्योरिटी को संभालते थे। अब ये सब के सब सिर्फ एक कोड में आ गए हैं।
इससे अंदाजा लगता है कि सिस्टम कितना पुराना और बिखरा हुआ था, है ना? तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें एक बहुत बड़ी, बहुत ही क्रिटिकल कमी थी। लाखों लोग, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, ये सब इस सुरक्षा चक्र से पूरी तरह बाहर थे, कोई प्रोटेक्शन नहीं। और इसी बिखराव को ठीक करने के लिए आया सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सीधी सी बात है, 9 अलग अलग कानूनों की जगह अब सिर्फ एक यूनिफाइड कानून। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। इसे भारतीय लेबर लॉ के सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ कहा गया है। मतलब ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। अब ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। पहले क्या था? 9 अलग अलग एक्ट्स, ढेरों नियम जो एक दूसरे पर ओवरलैप करते थे। और अब सिर्फ एक कोड जिसमें सब कुछ 14 चैप्टर्स और 164 सेक्शंस में बड़े करीने से रखा गया है। मकसद एकदम क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए अब आते हैं इस कोड के पहले सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव पर। वो है सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना। अब लाखों नए वर्कर्स इसके अंदर आ गए हैं। और इनमें सबसे पहले आते हैं गिग वर्कर्स। इस कोड में पहली बार इन्हें कानूनी परिभाषा मिली है। आसान भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो किसी एक कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स। और फिर आते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये भी एक नई कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप के जरिए काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, जैसे कैब ड्राइवर्स या फूड डिलीवरी पार्टनर्स। अब सवाल उठता है कि इनके लिए सोशल सिक्योरिटी की फंडिंग कहां से आएगी? तो देखिए, इसके लिए भी एक नया सिस्टम बनाया गया है। अब एग्रीगेटर्स यानी कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए ये जरूरी हो गया है कि वह अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% इन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए दें। ये सच में एक गेम चेंजर है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े बदलाव की, और ये वो नियम है जिसने पेरोल की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये है 50% वेतन का नियम। इसने सच में सैलरी कैलकुलेट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें वेतन या वेजेस की नई परिभाषा को समझना होगा। इस कोड के हिसाब से वेतन में 2 चीजें पक्की हैं, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस। और बहुत सी चीजें बाहर हैं, जैसे एचआरए, बोनस, ट्रैवल अलाउंस, ओवरटाइम वगैरह वगैरह। तो फिर ये 50% का नियम है क्या चीज? देखिए, ये नियम लाया क्यों गया? इसका मकसद उन कंपनियों को रोकना था जो सैलरी स्ट्रक्चर में खेल करती थीं। होता क्या था कि बेसिक सैलरी बहुत कम दिखा दी और अलाउंसेस बहुत ज्यादा, ताकि पीएफ जैसे जो भी कटौतियां हैं वो कम से कम हो। बस इसी चीज को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, किसी की भी टोटल सैलरी में से वो सारे अलाउंस अलग कर लीजिए जो वेतन की परिभाषा से बाहर हैं। स्टेप 2, अब चेक कीजिए कि क्या इन सारे अलाउंस का टोटल पूरी सैलरी के 50% से ज्यादा है। स्टेप 3, अगर जवाब हाँ है तो जितना भी अमाउंट 50% से ज्यादा है उसे अब वेतन का हिस्सा माना जाएगा लीगली। और स्टेप 4, बस अब पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुटी जैसी सारी कटौतियां इसी नए बढ़े हुए वेतन पर कैलकुलेट होंगी। अब एक उदाहरण से ये चीज बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी। मान लेते हैं किसी की टोटल महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए। इसमें से 30,000 रुपए बेसिक पे है और बाकी 70,000 रुपए अलाउंस हैं। अब नियम क्या कहता है? अलाउंस टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। 1 लाख का 50% हुआ 50,000 रुपए। लेकिन यहां अलाउंस कितने हैं? 70,000 रुपए, जो कि लिमिट से 20,000 रुपए ज्यादा हैं। तो अब क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए हैं उन्हें कानूनी तौर पर बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा। तो अब पीएफ जैसी कटौतियों के लिए वेतन कितना माना जाएगा? 30,000 का बेसिक प्लस ये 20,000, यानी कुल 50,000 रुपए। ओके, अब आते हैं तीसरे बड़े बदलाव पर। यह है कंप्लायंस, यानी नियमों का पालन। और अब ये पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। यहां फोकस इंस्पेक्शन से हटकर फैसिलिटेशन पर आ गया है। मतलब अब डराने की बजाय मदद करने पर जोर है। पहले क्या होता था? एक इंस्पेक्टर होता था जिसका काम था सिर्फ गलतियां निकालना। माहौल थोड़ा टकराव वाला रहता था। अब है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इनका काम है सलाह देना, गाइड करना और कंप्लायंस में मदद करना। तो ये सोच में ही एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये सब मुमकिन हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इंस्पेक्शन वेब बेस्ड और रैंडमाइज्ड होंगे। कंपनियों के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होगा, सारे रिटर्न्स और रिकॉर्ड्स डिजिटल होंगे, और फायदों के लिए आधार लिंक करना जरूरी होगा। और सबसे अच्छी बात, अब किसी पर सीधे मुकदमा नहीं होगा, पहले उसे लिखित में कंप्लायंस ठीक करने का मौका दिया जाएगा। तो इन सब बदलावों का बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? आइए अब बॉटम लाइन की बात करते हैं। मतलब कंपनियों के लिए इसमें सबसे बड़े रिस्क क्या हैं और उन्हें क्या करना चाहिए? कंपनियों को 3 चीजों का खास ध्यान रखना होगा। पहला, वेज की परिभाषा। अगर सैलरी स्ट्रक्चर में 50% नियम का पालन नहीं किया तो 5 साल तक का पुराना बकाया ब्याज और पेनाल्टी के साथ देना पड़ सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर की गलती। अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर ने अपने लोगों का सोशल सिक्योरिटी पैसा जमा नहीं किया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और तीसरा, ग्रेच्युटी। इसका इंश्योरेंस लेना अब जरूरी है, वरना लायबिलिटी तुरंत बन जाएगी।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या ये ऐतिहासिक कोड सच में भारत की इतनी बड़ी और अलग-अलग तरह की वर्कफोर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी का पूरा नजारा बदल पाएगा? देखिए, इसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन असली असर तो वक्त ही बताएगा। सोचिए कि एक पुराना 1950 के दशक का कंप्यूटर है, आकार में बहुत बड़ा, मतलब एक पूरे कमरे जितना, जो लगातार हैंग होता रहता है। हाँ, उन पुराने सिस्टम्स को मेंटेन करना ही एक सपने जैसा था। बिल्कुल, और वो एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है जिसे समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। उस पुराने सिस्टम का जो कोर कोड था वो एक ही लॉजिक पर बना था, जिसे हम मास्टर और सर्वेंट वाला लॉजिक कहते हैं। वही, जहां हमेशा एक मास्टर होता है और एक सर्वेंट। लेकिन फिर अचानक उस धूल खाते, स्लो और आउटडेटेड सिस्टम को निकालकर सीधे 2025 का सबसे लेटेस्ट, स्मार्ट और क्लाउड कनेक्टेड ओएस इंस्टॉल कर दिया जाता है। अरे वाह, ये तुलना दरअसल आज के विषय की पूरी तस्वीर साफ कर देती है, क्योंकि हम आज जिस मुद्दे पर इस डीप डाइव में चर्चा कर रहे हैं वो भारत के श्रम कानून यानी लेबर लॉज का एक वैसा ही ऐतिहासिक और विशाल ओएस अपडेट है। सही कहा आपने। हमारी आज की चर्चा द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पर केंद्रित है, और इस विश्लेषण के लिए हमने 3 बेहद ठोस स्रोत, मतलब सोर्सेज को खंगाला है। हाँ, जिसमें हमारे पास CSS 2020 मास्टर समरी है, राइट, और उसके साथ ही 50% थ्रेशोल्ड फॉर वेज कंप्लायंस के डिटेल निर्देश हैं, और इस कानून के हर एक पहलू पर लिखा गया एक काफी भारी भरकम लीगल ट्रीटीज भी है, जो कि अपने आप में एक बहुत डीप डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये नया कानून जो 2020 में पारित हुआ और 21 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू हो रहा है, वो जमीन पर काम कैसे करेगा। क्योंकि इस एक कानून ने 9 पुराने और आपस में उलझे हुए कानूनों को खत्म कर दिया है। हाँ, जैसे 1952 का EPF एक्ट और 1961 का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इन सब को हटाकर एक नया ढांचा बनाया गया है। और पता है, इस बदलाव का स्केल इतना बड़ा है कि ये AC दफ्तर में बैठने वाले एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई से लेकर सड़क पर तपती धूप में खाना डिलीवर करने वाले गिग वर्कर तक, एग्जैक्टली भारत के हर कामगार की टेक होम सैलरी और भविष्य की सुरक्षा को ये पूरी तरह से बदलने वाला है। देखिए, पुराना कानून मूल रूप से सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए था, या फिर उन लोगों के आसपास घूमता था जिनकी एक बंदी हुई परमानेंट नौकरी थी। सही, लेकिन पिछले 10-15 सालों में काम करने का तरीका और इकोनॉमी का पूरा मॉडल ही बदल चुका है। कानून को इस नए सच को अपनाना ही था, वरना वो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाता। तो चलिए इस नए ओएस अपडेट का सबसे बड़ा और रिवोल्यूशनरी फीचर देखते हैं। ये फीचर उन लोगों के बारे में है जिन्हें पुराने सिस्टम ने रिकॉग्नाइज करने से ही इनकार कर दिया था, यानी गिग इकोनॉमी और उसके वर्कर्स। बिल्कुल, इतिहास में पहली बार गिग वर्कर जैसे फ्रीलांस कोडर्स या डिजाइनर्स हो गए, या प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे जोमैटो, स्विगी या उबर के पार्टनर्स। राइट, इन सबको आखिरकार किसी कानून ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए हैं। इसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझना जरूरी है। लीगल ट्रीटीज के मुताबिक सेक्शन 2(35) और सेक्शन 2(61) के तहत अब इन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक कानूनी पहचान मिल गई है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी। वही तो, ये बहुत बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि पुराने कानून के हिसाब से ये लोग ना तो एम्प्लॉय थे और ना ही कंपनीज उन्हें अपना कर्मचारी मानती थी। उन्हें बस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या पार्टनर कह दिया जाता था, एक शब्द का खेल था बस। हाँ, और इस एक शब्द के खेल से कंपनीज प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस या किसी भी तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट देने की कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह बच जाती थी। एक तरह से कहा जाए तो ये उन डिजिटल बिचौलियों, मेरा मतलब है डिजिटल मिडलमैन, को उनके द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम की असली कीमत चुकाने के लिए मजबूर करने जैसा है। कानून ने इन प्लेटफॉर्म्स को एग्रीगेटर्स का नाम दिया है, और हमारे स्रोत बताते हैं कि इन्हें कानून की 7th शेड्यूल में रखा गया है। पर एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। ये सब सुनने में अच्छा लगता है कि गिग वर्कर्स को सुरक्षा मिल रही है। हाँ, नियत तो काफी अच्छी है, पर अगर इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो क्या हम इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहे? ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है। मतलब अगर उन्हें अचानक से लाखों वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का पैसा देना पड़े तो क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉडल ही दिवालिया नहीं हो जाएगा? देखिए, ये डर इंडस्ट्री में भी था और इसीलिए कानून बनाते वक्त एक बहुत ही फाइन बैलेंस बनाया गया है। कानून ये नहीं कहता कि एग्रीगेटर्स को एक आम एम्प्लॉयर की तरह पूरा 12% PF भरना होगा। ओह, तो स्ट्रक्चर अलग है। बिल्कुल, इसके बजाय एक नया सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है। नियम यह है कि एग्रीगेटर्स को अपने सालाना टर्नओवर का 1% से लेकर 2% हिस्सा इस फंड में जमा करना होगा। अच्छा, सिर्फ 1 से 2%? हाँ, और इसमें
एक सेफ्टी नेट भी जोड़ा गया है। ये रकम किसी भी हाल में उन वर्कर्स को दिए जाने वाले कुल भुगतान यानी टोटल पे आउट्स के 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। वेट, लेकिन एक सेकंड, यहां मुझे एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया नजर आ रहा है। एनुअल टर्नओवर सुनने में आसान लगता है, पर एक प्लेटफॉर्म के लिए इसका असली मतलब क्या है? आप पॉइंट पर आ गए, यही सबसे बड़ी उलझन है। मान लीजिए किसी ई कॉमर्स या फूड डिलीवरी ऐप पर साल भर में 100 करोड़ रुपए का सामान बिका, जिसे हम ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू या GMV कहते हैं। पर उस 100 करोड़ में से प्लेटफॉर्म का अपना कमीशन तो शायद सिर्फ 10 करोड़ ही था ना? सही हिसाब लगाया आपने। तो कानून किस पर 1 या 2% मांग रहा है? पूरे 100 करोड़ के GMV पर या उनके 10 करोड़ के कमीशन पर? ये इस कानून का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है, जो लीगल ट्रीटीज में डिटेल में हाईलाइट किया गया है। सच में? हाँ, क्योंकि अगर सरकार ने ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी GMV को टर्नओवर मान लिया, तो सोचिए क्या होगा। 100 करोड़ का 2% होता है 2 करोड़। और प्लेटफॉर्म की कुल कमाई थी सिर्फ 10 करोड़। एग्जैक्टली, यानी उनका 20% रेवेन्यू सिर्फ इस टैक्स में चला जाएगा। ये तो उनके बिजनेस मॉडल को सच में तबाह कर सकता है। हाँ, वो तो रातों रात बंद हो जाएंगे। वाले वक्त में कोर्ट के फैसलों या नए नोटिफिकेशन से ही क्लियर होगा। पर एक बात तय है, अब सुरक्षा की कीमत को इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स और उनके डिलीवरी चार्जेस के अंदर इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। मतलब डिजिटल इकोनॉमी का पूरा मैथ ही बदलने वाला है। खैर, प्लेटफॉर्म्स के लिए तो नया टैक्स आ गया, लेकिन जो लोग पहले से इस पुराने सिस्टम के अंदर थे, उनका क्या? आप ट्रेडिशनल एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं? हाँ, वो लोग जो ट्रेडिशनल 9 to 5 बंधी हुई नौकरियों में है, उनकी टेक होम सैलरी यानी हर महीने अकाउंट में आने वाले कैश पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि हमारे नोट्स में एक 50% फ्लो रूल पर बहुत जोर दिया गया है। ओह, अगर गिग वर्कर्स वाला नियम इस कानून का सबसे बड़ा कदम है ना, तो ये 50% फ्लो रूल इस कानून का सबसे बड़ा भूकंप है। भूकंप मतलब इतना ड्रास्टिक है ये? बिल्कुल। देश के हर पेरोल, HR और फाइनेंस डिपार्टमेंट की रातों की नींद इस वक्त इसी नियम ने उड़ाई हुई है। सेक्शन 2(88) ने वेजेस यानी वेतन की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में खोलते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि पुराना सिस्टम क्या था। मुझे याद है PF यानी प्रोविडेंट फंड सिर्फ बेसिक सैलरी पर कटता था। हाँ, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती थी। राइट। तो HR डिपार्टमेंट्स ने एक बहुत चालाकी भरा रास्ता निकाल लिया था। वो किसी भी कर्मचारी की सैलरी का सिर्फ 20% हिस्सा बेसिक में रखते थे और बाकी 80% हिस्से को HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस और स्पेशल अलाउंस में बांट देते थे। वहीं न जाने किन किन अजीबोगरीब भत्तों में बांट देते थे। कागज पर सैलरी दिखती थी 1 लाख, पर PF कट रहा होता था सिर्फ 20,000 पर। इससे कंपनी का काफी PF कंट्रीब्यूशन बच जाता था। और ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस बन चुकी थी। लगभग हर कंपनी यही करती थी। लेकिन नया कानून इसी लूपहोल को हमेशा के लिए बंद कर रहा है। तो ये 50% का फ्लोर रूल काम कैसे करता है? इसका सीधा सा गणित ये है, आपकी बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस यानी DA और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर जो रकम बनती है, वो किसी भी कर्मचारी की टोटल सैलरी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए, जिसे हम आम बोलचाल में CTC कहते हैं। और अगर नहीं हुई तो? अगर आपके बाकी अलाउंसेस जैसे HRA, ओवरटाइम या स्पेशल अलाउंस टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो कानून उस एक्स्ट्रा हिस्से को अलाउंस नहीं मानेगा। ओह, तो वो क्या बन जाएगा? कानून उसको वापस वेजेस यानी बेसिक में जोड़ देगा। ओके। और फिर उस बढ़ी हुई रकम पर PF और ग्रेचुइटी कैलकुलेट होगी। इसे उस 1 लाख वाले उदाहरण से समझते हैं जो हमारी मास्टर समरी में दिया गया है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की कुल सैलरी 1 लाख रुपए है। ठीक है। अब तक कंपनी उसे 30,000 बेसिक और 70,000 अलाउंसेस के रूप में दे रही थी। नई नियम के हिसाब से अलाउंसेस 50% यानी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। यहाँ अलाउंसेस 70,000 हैं, जो सीमा से 20,000 ज्यादा हैं। तो कानून कहेगा कि इस एक्स्ट्रा 20,000 को वापस बेसिक में जोड़ो। अब PF के कैलकुलेशन के लिए नया वेज बेस 30,000 नहीं बल्कि 30,000 प्लस 20,000 यानी 50,000 माना जाएगा। एकदम सही गणित लगाया आपने। सीधे शब्दों में कर्मचारी की टेक होम सैलरी कम हो जाएगी क्योंकि PF ज्यादा कटेगा। हाँ, इन हैंड सैलरी डेफिनेटली कम होगी। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल पुशबैक देना चाहता हूँ। अगर आप कंपनीज को फोर्स करेंगे कि वो PF और ग्रेचुइटी का एक्स्ट्रा बोझ उठाएं और बेसिक को 50% तक ले जाएं, तो क्या कंपनीज बस चुपचाप अपना मुनाफा कम होने देंगी? सही सवाल है। कोई भी कंपनी अपना मुनाफा क्यों कम करेगी? वही ना, क्या वो इस नए खर्चे को बैलेंस करने के लिए किसी कर्मचारी का पूरा CTC ही कम नहीं कर देंगी? एंड में तो नुकसान उस एम्प्लॉय का ही हुआ ना। ये एक बहुत ही कड़वे सच की तरफ इशारा है। शॉर्ट टर्म में हाँ, बहुत सी ऐसी कंपनीज जिनके मार्जिन्स कम है, वो नए लोगों को हायर करते वक्त CTC स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डिजाइन करेंगी कि उनका ओवरऑल कॉस्ट ना बढ़े, जिसका सीधा मतलब है कम इन हैंड सैलरी। बिल्कुल इन हैंड सैलरी हिट लेगी।
लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार का मकसद ये है कि रिटायरमेंट कॉर्पस और सोशल सिक्योरिटी नेट मजबूत हो। मतलब जब लोग रिटायर होंगे तब उनके पास पैसा होगा। वही, लोग टेक होम सैलरी पर तो ध्यान देते हैं, पर जब अचानक नौकरी जाती है या रिटायरमेंट आता है तो उनके पास सेविंग्स नहीं होती। ये कानून एक तरह से फोर्स्ड सेविंग्स को बढ़ा रहा है। अच्छा, और इस फोर्स सेविंग की वजह से जो 1950 का HRIS क्रैश हो रहा है उसकी तो बात ही अलग है। हमने पढ़ा कि इस एक छोटे से कैलकुलेशन की वजह से देश की हर कंपनी को अपने पेरोल ERP सिस्टम्स अपडेट करने पड़ रहे हैं। हाँ, और ये कोई छोटा IT प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि अब तक HR सॉफ्टवेयर स्टैटिक होते थे। एक बार सैलरी सेट कर दी तो हर महीने वही कैलकुलेट होती थी। पर अब सोचिए, किसी महीने एक कर्मचारी को बहुत बड़ा परफॉर्मेंस बोनस मिल जाता है। ओ, यही तो सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है इस वक्त। कैसे? अगर उस परफॉर्मेंस बोनस की वजह से उस एक महीने में अलाउंसेस 50% की लिमिट को तोड़ देते हैं तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि वो तुरंत उस महीने का PF डिडक्शन एडजस्ट करे। बाप रे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और कुछ कानूनी माहिरों का तो यहाँ तक मानना है कि एक महीने का फ्लक्चुएशन पूरे साल के PF लाइबिलिटी का कैलकुलेशन बदल सकता है। और इस पर कानून क्या कहता है? कानून अभी इस मुद्दे पर शांत है और HR डिपार्टमेंट्स अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये सच में किसी मजे या चक्रव्यूह जैसा लग रहा है। चलिए सैलरी और मैथ के गणित से थोड़ा बाहर निकलते हैं। एक और चीज जो इस नए OS अपडेट में बदली गई है वो है हमारे दफ्तर का माहौल और रोजमर्रा के अधिकार। वर्क कल्चर के बारे में। हाँ, इसमें मुझे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी FTE और मैटरनिटी बेनिफिट्स का जिक्र बहुत दिलचस्प और प्रैक्टिकली इंपैक्टफुल लगा। ओह, एब्सोल्युटली। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का आधुनिकीकरण समानता यानी इक्वालिटी की दिशा में एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। पुराने सिस्टम में काफी अनफेयर प्रैक्टिसेस थी इसको लेके। बहुत ज्यादा। पहले क्या होता था, कंपनीज परमानेंट रोल्स देने से बचती थी और लोगों को लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखती थी। एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और एक परमानेंट वर्कर दोनों एक ही डेस्क पर बैठकर एक जैसा काम करते थे। पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ना तो उतनी सैलरी मिलती थी और ना ही हेल्थ बेनिफिट्स। सही कहा। नए कोड ने इस भेदभाव को कानूनन खत्म कर दिया है। अगर काम समान है तो वेजेस और अलाउंसेस भी समान होंगे। इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई किराएदार किसी बड़ी सोसाइटी में घर किराए पर लेता है। हाँ, ये एनालॉजी काफी फिट बैठती है। वो उस घर का मालिक नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट शायद सिर्फ 11 महीने का है, लेकिन उसे उस सोसाइटी का क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और जिम यूज करने का उतना ही हक मिल गया है जितना उस बिल्डिंग के परमानेंट मालिकों को मिला हुआ है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है और इस नए क्लब हाउस का सबसे बड़ा फायदा ग्रेचुइटी के रूप में मिल रहा है। ग्रेचुइटी में क्या बदला है? पहले कंपनीज वर्कर्स को 4 साल 11 महीने में निकाल देती थी, क्योंकि ग्रेचुइटी पाने के लिए किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी होता था। हाँ, ये तो मैंने बहुत सुना है। ये एक बहुत बड़ा शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन का तरीका था। बिल्कुल। अब FTE वर्कर्स के लिए ये 5 साल की शर्त पूरी तरह हटा दी गई है। सच में? हाँ, अगर कोई सिर्फ 1 साल या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उसे प्रो रैटर बेसिस पर, यानी उसने जितने वक्त काम किया है उसके अनुपात में ग्रेचुइटी देनी ही होगी। काम का प्रकार अब सुरक्षा तय नहीं करेगा। ये वाकई में एक फेयर सिस्टम लगता है। और इस नए ढांचे में महिलाओं के अधिकारों, खासकर मैटरनिटी बेनिफिट्स को जिस तरह से फ्रेम किया गया है वो सिर्फ कागजी नहीं लगता। उसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म दिया गया है ना? हाँ, पहले या दूसरे बच्चे के लिए 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। और अगर तीसरा बच्चा है या कोई माँ बच्चा गोद ले रही है या कमिश्निंग या सरोगेट मदर है तो उनके लिए 12 हफ्ते की छुट्टी तय की गई है। राइट। लेकिन जो डिटेल मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी वो थी क्रैश यानी डे केयर फैसिलिटी का नियम। अगर किसी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो वहां क्रैश होना अनिवार्य है। ये एक बहुत जरूरी कदम था। पर बात सिर्फ होने की नहीं है। कानून एक्सप्लिसिटली कहता है कि महिलाएं दिन में 4 बार उस क्रैश में जा सकती हैं। और इस 4 बार लिखने के पीछे एक बहुत गहरा कारण है। क्या कारण है? पुराने कानून में ऐसी स्पष्टता नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर एम्प्लॉयर अक्सर नर्सिंग मदर्स को परेशान करते थे। उन्हें बार बार अपने बच्चे को देखने जाने से रोकते थे। ओह, मतलब उन्हें काम के नाम पर गिल्ट ट्रिप किया जाता होगा। एग्जैक्टली। कानून में ये स्पेसिफिक नंबर डालने का मतलब है कि अब ये एक लीगल राइट बन गया है जिसे एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से डिनाई नहीं कर सकता। ये नर्सिंग राइट्स को एम्प्लॉयर के इंटरफेरेंस से कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा मैटरनिटी लीव के दौरान किसी भी महिला को नौकरी से निकालने पर एब्सोल्यूट बैन लगा दिया गया है। अक्सर हम देखते थे कि कंपनीज सटली रीस्ट्रक्चर करने के नाम पर प्रेग्नेंट महिलाओं को फायर कर देती थी। हाँ, ये बहुत कॉमन था। अब ऐसा करना सीधे सीधे कानून तोड़ना होगा। यहाँ तक कि मिसकैरेज के दुखद स्थिति में भी 6 हफ्ते की पेड लीव का प्रावधान है, जो कि फिजिकल और मेंटल रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब बेहतरीन नियमों को पढ़ने के बाद एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है।
कागज पर कानून कितना भी शानदार क्यों ना हो, उसमें लिखी बातें सिर्फ स्याही हैं अगर उन्हें ठीक से जमीन पर लागू ना किया जाए। इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। सरकार इन नियमों को मनवाएगी कैसे? पुराने इंस्पेक्टर राज का क्या होगा, जहां एक इंस्पेक्टर आके कंपनीज को धमकाता था और रिश्वत लेता था? ये बहुत वैलिड पॉइंट है, पर नए ओएस अपडेट ने उस पुराने इंस्पेक्टर वाले सॉफ्टवेयर को भी डिलीट कर दिया है। अब एक नया पद बनाया गया है जिसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहते हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर? हाँ, इस बदले हुए नाम के पीछे की फिलॉसफी समझिए। इसका काम सिर्फ दफ्तर में घुसकर गलतियां निकालना और फाइन लगाना नहीं है। तो और क्या काम है? इसका काम है कंप्लायंस, यानी कानून का पालन करने में एम्प्लॉयर्स की मदद करना। और एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब इंस्पेक्शंस वेब बेस्ड और कंप्लीटली रैंडम होंगे। रैंडम मतलब सिस्टम तय करेगा? हाँ, किस कंपनी का इंस्पेक्शन कौन से इंस्पेक्टर करेगा ये पहले से तय नहीं होगा, जिससे पक्षपात और करप्शन की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, नाम सुन के मुझे उसे एक दोस्त जैसे दिखने वाले पुलिस वाले की याद आती है। कैसा पुलिस वाला? जो मुस्कुराते हुए आपको रास्ता भी दिखाता है, मदद भी करता है, लेकिन अगर आपने उसकी बात नहीं मानी या किसी के पीएफ की रकम चुरा ली तो उसके हाथ में 3 साल की जेल का दंडा भी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि मैं देख रहा हूं सजा के मामले में ये कानून बिल्कुल भी नरम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है कंप्लायंस विंडो का। अगर किसी कंपनी से पहली बार कोई छोटी या एडमिनिस्ट्रेटिव गलती होती है, जैसे कोई फॉर्म ठीक से नहीं भरा, तो इंस्पेक्टर तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। अच्छा, एक मौका देगा। हाँ, वो गलती सुधारने का एक मौका और एक टाइम विंडो देगा। लेकिन अगर मामला चोरी का है, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी की सैलरी से पीएफ का पैसा काट लिया पर उसे सरकार के पास जमा ही नहीं किया, तो इसे अत्यंत गंभीर अपराध माना गया है। तब तो सीधा एक्शन होगा। इसमें सीधे 1 से 3 साल तक की मैंडेटरी जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कानून कॉर्पोरेट वेल को हटा देता है। कॉर्पोरेट वेल, ये क्या होता है? कॉर्पोरेट वेल वो कानूनी ढाल होती है जो कंपनी के ओनर्स को उनकी कंपनी की गलतियों के लिए पर्सनली सजा पाने से बचाती है। नया कानून इस ढाल को तोड़ देता है। वाह। अगर पीएफ का पैसा चुराया गया है तो कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मतलब छोटी गलतियों के लिए फैसिलिटेशन, पर हक मारने वालों के लिए सीधी जेल। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? वही कि ये सिर्फ एक कानून नहीं, एक पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सिर्फ पुराने कानूनों का एक कॉपी पेस्ट नहीं है। आधार कार्ड लिंकिंग के जरिए फ्रॉड्स और डुप्लीकेट अकाउंट्स रोकना, 50% फ्लोर रूल के जरिए अलाउंसेस के लूप होल्स को हमेशा के लिए बंद करना, और गिग वर्कर्स को पहचान देना। हाँ, सबसे बढ़कर भारत की सड़कों और स्क्रीन्स पर मेहनत करने वाले हर एक गिग वर्कर को पहचान देना। ये अपने आप में इस देश के हर एक कामगार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक बहुत विशाल और कॉम्प्लेक्स प्रयास है। असल में ये कानून इस बात की मंजूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब मिल्स और फैक्ट्रीज की चारदीवारी से निकलकर स्मार्टफोन्स और क्लाउड सर्वर्स पर आ चुकी है। फ्रेमवर्क तो रेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, एग्रीगेटर्स के टर्नओवर जैसी उलझनें अभी भी है। हाँ, चैलेंजेस तो आएंगे। असली इम्तिहान तब होगा जब ये पोर्टल्स जमीन पर चलेंगे और ईआरपी सिस्टम्स नई रियलिटीज को फेस करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इस कानून से आगे देखकर एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जिस पर शायद अभी तक उतनी चर्चा नहीं हुई है। ऐसी कौन सी स्थिति है? देखिए, इस कानून ने जोमेटो और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के गिग वर्कर्स को तो पहचान दे दी, लेकिन सोचिए अगर एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो चुकी है और इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए देश की सीमाएं यानी बॉर्डर्स कोई मायने नहीं रखती, तो क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स का क्या होगा? वही, उनका क्या होगा जो क्रॉस बॉर्डर गिग वर्कर्स हैं। मान लीजिए कोई बेंगलोर या जयपुर में अपने घर पर बैठकर किसी यूरोपियन या अमेरिकन ऐप के लिए फ्रीलांस कोडिंग या एआई ट्रेनिंग का काम कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसे सामाजिक सुरक्षा कौन देगा? भारत की सरकार या उस ऐप के देश की सरकार? जब दुनिया इतनी कनेक्ट हो चुकी है कि काम और पैसा बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में इन वर्कर्स को सुरक्षा देने के लिए देशों को अपने राष्ट्रीय कानूनों से आगे बढ़कर ग्लोबल ट्रीटीज यानी वैश्विक संधियों की जरूरत पड़ेगी? शायद वही अगला लॉजिकल स्टेप होगा। हमने शुरुआत में बात की थी एक पुराने 1950 के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसे आज एक 2025 के नए आधुनिक सिस्टम से अपडेट कर दिया गया है। हार्डवेयर वही पुराना है। हाँ, हार्डवेयर वही है, हमारी मेहनत करने वाली जनता, लेकिन इस हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर अब पूरी तरह बदल चुका है। अब बस देखना यह है कि ये नया ओएस क्रैश होता है या भारत के करोड़ों लोगों को एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर देता है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बिल्कुल, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू द डिबेट। जब आप अपने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं तो आपको क्या उम्मीद होती है? यही ना कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, मतलब पुराने बग्स फिक्स हो चुके होंगे और इंटरफेस ज्यादा साफ सुथरा होगा। बिल्कुल, मतलब एक अच्छे अपडेट का तो यही काम है कि जिंदगी आसान हो, ना कि हर क्लिक पर आपको एक नई एरर स्क्रीन का सामना करना पड़े और सिस्टम क्रैश होने का डर रहे। सही कहा। और देखिए, आज हमारी चर्चा का केंद्र भी कुछ ऐसा ही है।
जब आप एक अरब से ज्यादा लोगों वाले देश के श्रम कानूनों का यानी लेबर लॉज का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं तो आप सिर्फ कुछ नियम नहीं बदल रहे होते। आप पूरी नींव बदल रहे होते हैं। एग्जैक्टली आप कॉर्पोरेट इंडिया के पेरोल, स्टार्टअप्स के बिजनेस मॉडल और करोड़ों कामगारों की आजीविका की पूरी नींव बदल रहे होते हैं। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो 21 नवंबर 2025 को लागू हुआ, वो भारत के 9 पुराने श्रम कानूनों को एक में मिला देता है, जिसमें ईपीएफ और ईएसआईसी जैसे पुराने कानून शामिल हैं। हाँ, और इसका सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है सभी कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना, चाहे वो दफ्तरों में बैठने वाले लोग हों, असंगठित मजदूर हों या फिर जोमैटो और उबर जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स हों। जो सिद्धांत रूप में मतलब थ्योरी में किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए एक बहुत ही आदर्श और जरूरी कदम लगता है। राइट, लेकिन आज हमारा मुख्य सवाल यही है कि क्या ये नया कोड वाकई भारत में सामाजिक सुरक्षा का एक पारदर्शी और सार्वभौम ढांचा है, या फिर इसकी जटिलताएं, अस्पष्ट परिभाषाएं और कठोर दंडात्मक प्रावधान व्यवसायों के लिए ऐसी बाधाएं पैदा करते हैं जो अंततः रोजगार सृजन को ही धीमा कर देंगी। मैं इस कोड को एक ऐतिहासिक सुधार मानती हूं जो कामगारों की सुरक्षा और कंप्लायंस में पारदर्शिता लाता है। और मैं इस पूरे कोड को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा तर्क ये है कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जमीन पर ये अस्पष्टताओं का एक विशाल पुलिंदा है। इसके अत्यधिक कठोर कॉर्पोरेट प्रावधान इसे व्यवहारिक रूप से बहुत जोखिम भरा बनाते हैं, जिससे कंपनियों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि खौफ बहुत भारी शब्द है। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से डिकोड करते हैं। देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगी कि ये कोड मास्टर सर्वेंट के उस पुराने ढांचे को हमेशा के लिए तोड़ देता है जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था। क्योंकि आज काम का स्वरूप बदल चुका है। बिल्कुल, ये कोड पहली बार मानता है कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय हुए बिना भी सामाजिक सुरक्षा का हकदार है। इसके अलावा कॉर्पोरेट पेरोल में पारदर्शिता लाने के लिए ये 50% फ्लोर रूल लाया है, जिसने उन कंपनियों की नींद उड़ा दी है जो बेसिक पे को जानबूझकर कम रखती थीं, और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम पेश किया गया है। मुझे यहीं आपको थोड़ा रोकना होगा। आपने 50% फ्लोर रूल और फैसिलिटेटर का जिक्र किया। मतलब दिल्ली के किसी वातानुकूलित दफ्तर में बैठकर ये नीतियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब एक एचआर मैनेजर या ऑडिटर को इसे लागू करना पड़ता है तो ये एक प्रैक्टिकल नाइटमेयर बन जाता है। ऐसा क्यों? ये तो पारदर्शिता के लिए है। वेरिएबल पे कहते हैं उसकी गणितीय सच्चाई को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, और आप जिसे फैसिलिटेशन कह रही हैं, मैं उसे उत्पीड़न मानता हूं। धारा 134 और 35 के तहत बिना समझौते वाले अपराधों में सीधे डायरेक्टर्स को जेल भेजना, ये कोई फैसिलिटेशन नहीं है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। इरादों की चर्चा से आगे बढ़ते हुए सीधे पेरोल के उस गणितीय यथार्थ पर आते हैं जिसे आप नाइटमेयर कह रहे हैं। मैं इस 50% रूल को एक रिसती हुई बाल्टी को ठीक करने के रूप में देखती हूँ। दशकों से भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हो रहा था? मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है। एचआरए और भत्तों का खेल, राइट? हाँ, कंपनियां 50 तरह के भत्तों का इस्तेमाल करके उसकी बेसिक पे सिर्फ 20 या 30 हजार कर देती थी। राइट, क्योंकि पीएफ और ईएसआईसी उसी बेसिक पेपर करता है। एग्जैक्टली। और नतीजा क्या होता था? जब वो कर्मचारी रिटायर होता है तो पीएफ खाते में कुछ खास बचता ही नहीं है। धारा 288 इस चोरी को रोकती है। यह स्पष्ट करती है कि अगर आपके भत्ते 50% से ज्यादा हैं तो अतिरिक्त राशि को कानूनी तौर पे वेतन मान लिया जाएगा। उसी 1 लाख के उदाहरण में अगर बेसिक 30,000 है और भत्ते 70,000 हैं तो 20,000 वापस बेसिक में जुड़ जाएंगे। अब पीएफ 50,000 पर कटेगा। एचआर सॉफ्टवेयर को बस एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। ये कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित कर रहा है। इसमें नाइटमेयर क्या है? देखिए, कागजों पर ये 1 लाख वाला फ्लैट उदाहरण बहुत सीधा लगता है, लेकिन वास्तविकता में पेरोल इतना लीनियर या स्थिर नहीं होता। एक सेल्स या टेक एम्प्लॉय का सोचिए, साल में एक बार उसे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस बोनस या भारी सेल्स कमीशन मिलता है। तो उस महीने उसकी कुल आय बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन अचानक उस एक महीने के उसके भत्ते और कमीशन 50% की सीमा से बहुत ऊपर चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इस एक महीने के उछाल से पूरे वित्तीय वर्ष की पीएफ देयता बदल जाएगी? क्या एचआर सिस्टम को पीछे जाके पिछले 11 महीनों की जटिल गणना फिर से करनी होगी? एक सेकंड, मुझे लगता है आप नहीं, जरा सोचिए, क्या कंपनी को अपनी जेब से उस कमीशन पर भी 12% पीएफ देना होगा जिसका बजट उन्होंने कभी बनाया ही नहीं था? कानून इस अति परिवर्तनशील वेतन पर बिल्कुल मौन है। एक ऑडिटर इस अस्पष्टता का क्या फायदा उठा सकती हैं, ये आप समझ सकती हैं। मैं आपकी चिंता समझ रही हूं, लेकिन मुझे लगता है आप अपवाद को नियम बना रहे हैं। इस कानून का मुख्य लक्ष्य सिस्टमिक स्ट्रक्चरिंग को रोकना है, न कि साल के अंत के बोनस को दंडित करना।
मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले सर्कुलर इस 1 महीने के बोनस वाले परिदृश्य को स्पष्ट कर देंगे। आप सिर्फ एक तकनीकी पेज के आधार पर पूरे 50% नियम को खारिज नहीं कर सकते। आर को यूं ही नहीं छोड़ सकते। जब तक नियम स्पष्ट नहीं होते तब तक एक सरकारी ऑडिटर उस 1 महीने के बोनस पर पीएफ न काटने के लिए कंपनी पर लाखों का जुर्माना लगा सकता है। खैर, मैं मानती हूं कि वेरिएबल पे और इसके कैलकुलेशन में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, लेकिन अगर एक फिक्स्ड सैलरी वाले पारंपरिक कर्मचारी का पीएफ कैलकुलेट करना एचआर के लिए इतना बड़ा सिरदर्द लग रहा है, तो जरा सोचिए उस आधुनिक ऐप आधारित अर्थव्यवस्था का क्या होगा। आपका मतलब गिग इकोनॉमी से है? बिल्कुल, जहां ना कोई फिक्स सैलरी है, ना पारंपरिक बॉस। और मेरे विचार में यह इस पूरे कोड का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। पहली बार धारा 114 एग्रीगेटर्स जैसे उबर, जोमैटो या अर्बन कंपनी के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वे अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% एक सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा करें। फंड बनाने के लिए। हाँ, जरा इसके इम्पैक्ट के बारे में सोचिए। जो डिलीवरी पार्टनर 40 डिग्री की गर्मी में बिना किसी सुरक्षा के सड़कों पर खाना लाते हैं, उन्हें अब इस फंड से जीवन बीमा, अपंगता कवर और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था को केवल मुनाफे से निकालकर संधारणीय बनाता है। देखिए, डिलीवरी पार्टनर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि कानून में टर्नओवर की जो परिभाषा दी गई है वो कितनी अधूरी है? ये एक बहुत बड़ा लीगल ब्लैक होल है। ब्लैक होल कैसे? कानून तो स्पष्ट रूप से टर्नओवर का 1 से 2% मांग रहा है। ब्लैक होल ये है कि टर्नओवर का मतलब क्या है। मान लीजिए मेरा एक फूड डिलीवरी ऐप है। एक ग्राहक ने मेरे ऐप से 2000 रुपए का खाना ऑर्डर किया। उस 2000 रुपए में से 1700 रुपए उस रेस्टोरेंट के हैं जिसने खाना बनाया। राइट। तो मेरा यानी प्लेटफॉर्म का कमीशन या रेवेन्यू सिर्फ 300 रुपए है। अब सवाल यह है कि सरकार जो 1 से 2% लेवी लेगी वो किस पर लेगी? क्या वो मेरे 300 रुपए के रेवेन्यू पर होगी या वो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी जीएमवी उस पूरे 2000 रुपए पर होगी? कोड कहता है कि एग्रीगेटर का टर्नओवर, और कई सरकारी विभाग ई कॉमर्स में टर्नओवर को पूरे जीएमवी के रूप में देखते हैं। अगर सरकार ने कुल जीएमवी पर 2% लेवी लगा दी तो वो 40 रुपए बनते हैं। प्लेटफॉर्म कमा रहा है सिर्फ 300 रुपए। अगर 40 रुपए सीधे टैक्स में चले गए तो जिनका मार्जिन ही मुश्किल से 2-3% होता है, वे प्लेटफॉर्म्स तो रातों रात दिवालिया हो जाएंगे। मुझे लगता है आप इस कानून के सबसे बड़े सेफ्टी वॉल्व को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपकी जीएमवी वाली चिंता शायद जायज होती अगर कानून में कोई ऊपरी सीमा न होती, लेकिन धारा 114 स्पष्ट कहती है कि ये योगदान एग्रीगेटर द्वारा गिग वर्कर्स को दिए गए कुल भुगतान के 5% से अधिक नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये 5% की सीमा कैसे काम करती है? इसका मतलब ये है कि अगर प्लेटफॉर्म अपने सारे पार्टनर्स को साल भर में कुल 100 करोड़ रुपए का पे आउट दे रहा है, तो प्लेटफॉर्म की अधिकतम लायबिलिटी 5 करोड़ से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती, चाहे आप टर्नओवर को जीएमवी माने या रेवेन्यू। ये 5% की सीमा ही सुनिश्चित करती है कि कंपनियों पर अनुचित वित्तीय बोझ न पड़े। मैं मानता हूं कि 5% की सीमा एक राहत है, लेकिन इससे एक और बड़ा खतरा पैदा होता है, अनपेक्षित परिणामों का। अगर आप प्लेटफॉर्म को मजबूर करेंगे कि वो 5% तक का फंड दे, तो बहुत मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म अपना मार्जिन बचाने के लिए उस डिलीवरी पार्टनर के वास्तविक बेस पे आउट को ही कम कर दे। यानी आप जिसे सुरक्षा कह रही हैं, वो शायद वर्कर के रोज के टेक होम पे को ही सिकोड़ दे। ये तो हर कॉर्पोरेट टैक्स या लेवी के साथ होता है। आप इस डर से सुरक्षा देना तो बंद नहीं कर सकते ना। ठीक है, लेकिन चलिए एक और बहुत ही व्यवहारिक समस्या पर बात करते हैं, दोहरे प्रशासन का जोखिम। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिशियन है, सोमवार से शुक्रवार वो अपनी दुकान चलाता है, यानी वो स्वनियोजित है। इस नाते वो एक असंगठित कामगार है जिसके लिए राज्य सरकार का बोर्ड जिम्मेदार है। लेकिन सप्ताहांत पर कमाई बढ़ाने के लिए वो अर्बन कंपनी जैसे ऐप पर काम करता है। अब वो प्लेटफॉर्म वर्कर बन गया जिसके लिए राष्ट्रीय बोर्ड जिम्मेदार है। तो अब बताइए, उसके लाभों का प्रशासन कौन सा बोर्ड करेगा? क्या पैसा दोनों जगह से कटेगा? ये अनुपालन की एक ऐसी भूल भुलैया है जहां क्लेम के समय दोनों बोर्ड एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपेंगे। देखिए, जटिलता तो हर इतने बड़े बदलाव में होती है। हम 50 करोड़ से ज्यादा की वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके समाधान भी कोड में है। धारा 142 के तहत आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाया गया है। बैकएंड पर आधार आधारित एपीआई यह पहचान लेगी कि यह एक ही व्यक्ति है। मतलब सिस्टम खुद डुप्लीकेशन रोकेगा? बिल्कुल, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई दोहराव ना हो और लाभ सीधे सही व्यक्ति के खाते में पहुंचे। यह तकनीक के माध्यम से सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तकनीक सुशासन ला सकती है, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से लागू किया जाए तो ये लोगों को अधिकारों से वंचित भी कर सकती है। यदि किसी मजदूर का फिंगरप्रिंट घिस गया है या नेटवर्क ना होने से आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता, तो क्या एक गरीब कामगार अपनी जीवन भर की पीएफ जमा राशि से सिर्फ इसलिए वंचित हो जाएगा क्योंकि सर्वर डाउन था?
ये एक इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा है जो समय के साथ बेहतर हो रहा है। आप इस वजह से पूरे कानून को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। खैर, आर्थिक मॉडल से आगे बढ़कर अब मैं उस बिंदु पर आना चाहूंगी जो वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है, अनुपालन और दंडात्मक प्रणाली। अच्छा, मैं तो इसे इस कोड का सबसे डरावना हिस्सा मानता हूं। मैं धारा 137 का जिक्र करूंगी। ये डीक्रिमिनलाइजेशन की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। पुराने कानूनों में अगर एचआर रजिस्टर में कोई छोटी सी लिपिकीय गलती हो जाती थी तो लेबर इंस्पेक्टर सीधे एफआईआर दर्ज कर सकता था। अब ऐसा नहीं है। तो अब क्या होता है? अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर नियोक्ता को एक लिखित कंप्लायंस विंडो देता है। आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, सीधा कोर्ट नहीं घसीटा जाता। इसके अलावा इंस्पेक्शन अब वेब आधारित और रैंडमाइज्ड होंगे। सिस्टम तय करेगा कि किसका इंस्पेक्शन होना है। ये डराने की नहीं, सहयोग की व्यवस्था है। मुझे खेद है, लेकिन जब आप इसे सहयोग की व्यवस्था कहती हैं तो आप धारा 134 और 35 की कठोरता छिपा रही हैं। आप जिस कंप्लायंस विंडो की बात कर रही हैं वो सिर्फ पहली बार होने वाली बहुत छोटी गलतियों पर लागू होती है। मैं धारा 135 पर कड़ा प्रहार करना चाहूंगा। धारा 135 जो कॉर्पोरेट अपराधों के लिए है, राइट? बिल्कुल। यदि कंपनी से पीएफ जमा करने में देरी होती है तो कंपनी का हर डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाता है। यह गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का सिद्धांत है। और सबसे खतरनाक है धारा 134, मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी। हाँ, यदि आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले किसी थर्ड पार्टी ठेकेदार ने अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया तो आप न केवल पैसे भरने के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि दोबारा गलती होने पर कंपनी के प्रबंधन को 2 से 3 साल की अनिवार्य जेल का सामना करना पड़ेगा। नॉन कंपाउंडेबल। सिर्फ एक वेंडर की चूक के लिए सीईओ को जेल भेजना फैसिलिटेशन नहीं है, ये उत्पीड़न है। मैं आपकी इस डर वाले थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानती। आपको ये समझना होगा कि बिना इसके क्या हो रहा था। कंपनियां फर्जी ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों को आउटसोर्स कर देती थीं ताकि उन्हें पीएफ न देना पड़े। ठेकेदार भाग गया तो मजदूर को कौन पूछेगा? ये धारा कंपनियों को मजबूर करती है कि वे अपना ड्यू डिलिजेंस करें और सही ठेकेदारों के साथ काम करें। ड्यू डिलिजेंस अपनी जगह है, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी एक बहुत अलग स्तर की बात है। और सिर्फ ठेकेदारी क्यों, मर्जर और एक्विजिशंस यानी M&A को लीजिए। यदि आज एक कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है तो वो नई कंपनी पिछले सभी बकाया कोड देयताओं के लिए उत्तरदायी हो जाती है। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट के ट्रांसफर को लेकर? बिल्कुल। अगर पुरानी कंपनी ने 5 साल पहले किसी वेरिएबल पे पर पीएफ नहीं दिया था तो आज नई कंपनी के डायरेक्टर्स पर लायबिलिटी आ जाएगी। ये भारत के विलय और अधिग्रहण बाजार में बहुत बड़ा अघोषित जोखिम है। देखिए, अधिग्रहण के समय एक उचित लीगल ड्यू डिलिजेंस करना किसी भी खरीदार की अपनी जिम्मेदारी है। आप फायदे ले लें और मजदूरों का बकाया छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। अंततः ये पूरा कोड उन कामगारों के हितों की रक्षा के लिए है जो सिस्टम में सबसे नीचे आते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कामगारों की रक्षा सर्वोपरि है, लेकिन यदि अनुपालन का ढांचा इतना जटिल और डरावना हो जाएगा तो आप उन कंपनियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देंगे जो रोजगार दे रही हैं। आप एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें फंसने के बाद कंपनियां बाहर नहीं निकल पाएंगी। मुझे लगता है हम चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। चर्चा को समेटते हुए मैं ये कहूंगी कि तमाम चुनौतियों के बावजूद द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक ऐतिहासिक और साहसिक छलांग है। असंगठित मजदूरों और गिग वर्कर्स को पहली बार एक स्पष्ट कानूनी पहचान और सेफ्टी नेट देना, ये भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने वाला कदम है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एकदम सही है। अपनी बात दृढ़ता से दोहराऊंगा कि अत्यधिक दंडात्मक ढांचे, जेल भेजने वाले प्रावधानों और जीएमवी जैसी खतरनाक अस्पष्टताओं को सुलझाए बिना ये प्रणाली अपने ही बोझ तले दब सकती है। रोजगार पैदा करने वालों को जेल का डर दिखाकर आप मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। आपकी आपत्तियां जायज हैं और ये बहस साबित करती है कि हम कम से कम इस बात पर सहमत हैं कि इतनी विशाल और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में बांधने के लिए कई दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं इसे एक विकासवादी प्रक्रिया के रूप में देखता हूं। इसके वास्तविक परिणाम आने वाले कुछ सालों में ही स्पष्ट होंगे जब अदालतें इसकी व्याख्या करेंगी। सही कहा। हमारे श्रोताओं के लिए मेरा सुझाव है कि वे द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के मूल दस्तावेज का स्वयं अध्ययन करें। आधार लिंकिंग के प्रभाव और M&A देयताओं जैसे कई पहलुओं पर और गहराई से सोचा जा सकता है। हाँ, क्योंकि यह विषय केवल HR या वकीलों तक सीमित नहीं है। ये हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो इस देश में काम करता है या अपना व्यवसाय चलाता है। बिल्कुल। तो बस जैसा कि हमने शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण दिया था, भारत के श्रम कानूनों को अपडेट करना एक जटिल प्रक्रिया है। अभी कुछ समय तक हम सभी बस बीटा टेस्टर्स की तरह हैं जो इस नए सिस्टम को नेविगेट कर रहे हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।